Hello students, welcome to PS channel. So students, today we will discuss about optical isomerism. Optical isomerism थोरो डिस्कशन करने से पहले कुछ टर्म्स को हमें बाय डेफिनेशन याद रखना है. ओके, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ए बीम ऑफ लाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ waves of light vibrating in one plane is called plane polarized light. This one is your normal light in which the waves vibrating in different planes. When this is passed through a polarizer, suppose your nickel polarizer, a nickel prism which is used as a polarizer, then that converts the light in which the vibration takes place only in one plane, and that is known as your plane polarized light. Now what is polarizer? Polarizer is a instrument, that means it is a instrument which is used to make the ordinary light into plane polarized light. अब यहाँ पे आप जो लिए हैं पोलराइजर, हम यहाँ पे निकोल प्रिज्म में से पोलराइजर लिया है जिसने नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया. ओके, next definition is what do you mean by optical inactive substance and what is optical active substance? The substance which does not rotate the plane polarized light is called optically inactive substance. अगर हम कोई भी सब्सटेंस को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के थ्रू पास करेंगे एंड दैट सब्सटेंस डज नॉट रोटेट, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, देन दैट इज यूज्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस. And what is the opposite is your optical active? The substance which rotates the plane polarized light is called optically active substance. जो plane polarized light को rotate कर सकता है वो optical active है. Now what do you mean by rotate? Rotation means either plane polarized को right direction में rotate करेगा या left direction में rotate करेगा. And what is about the magnitude? What is the extent of rotation? That depends upon the substance. Okay, so those substances are known as your optically active substances. Now, जैसे मैंने अभी भी बोला, रोटेशन कैसे हो सकता है. ए सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी. एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम कैसे रोटेट मतलब डेजिग्नेट करते हैं, उसको स्मॉल डी, ऐसे डी फॉर्म बोलते हैं. और करेंटली हम ये प्लस साइन यूज़ करते हैं. मॉडर्न टाइम्स में डी की जगह हम प्लस साइन यूज़ करते हैं फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी. सिमिलरली अगर राइट में डेक्स्ट्रो है तो लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट टू लिवियो रोटेटरी. ए सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट इज कॉल्ड लिवो रोटेटरी एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज एल फॉर्म और माइनस साइन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्चुअली सी हियर, जो अभी मैंने बोला डेक्स्ट्रोफॉर्म एंड लिवियोफॉर्म, प्लस एंड माइनस, these are the two isomers, D isomer and L isomers. So these two isomers of a compound are called optical isomers and the phenomenon is known as optical isomerism. Okay, now what is polar emitter? The direction and the magnitude of the rotation of plane polarized light by substance is measured with the help of an. अभी मैंने बोला कि आपका जो सब्सटेंस को रोटेट करेगा, ठीक है, आइदर राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन में कितना एक्सटेंट तक रोटेशन हो सकता है, उसको जिस इंस्ट्रूमेंट में हम मेजर करेंगे उसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल and what is achiral molecule? The molecule which are not superimposable on their mirror image are called chiral molecules. That means non-superimposable with each other, both the object and the mirror image. And the molecules which are superimposable on their mirror images are called achiral molecule. जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज मैंने लिया ब्यूटेन 2OL, इसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल, कायरल स्ट्रक्चर. कायरल हो गया तो क्या होगा बोल रहे थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. अब आप देखो ब्यूटेन 2OL, यहाँ पे तो दिखा 1 2 3 4 CH2 CH3 C2H5 है, तो 2 पोजिशन में अल्कोहल लगा है. अगर हम मिरर रखेंगे तो ये OH इज जस्ट अपोजिट H C2H5 CH3, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर मिरर इमेज में है. अब आप अगर 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं तो आपको क्या होगा, देखो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर OH CH3 C2H5H. तब अगर आप A एंड C को देखोगे तो क्या है, C इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन D. C इज नॉन सुपर इम्पोजिबल. सो व्हाट हैपेंस हियर, here the C structure which is formed here and अब A structure को देखो, C structure को देखो. Now C is non superimposable on A. Okay. Similarly एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जहाँ पे हम एक आयरल स्ट्रक्चर को दिखाएंगे. देखो यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन 2OL वेयर एक आयरल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. आप देखो this carbon is your achiral carbon because two CH3 groups are same groups are attached here. And what is the mirror image of this? This one is the mirror image of this, right?
and when you rotate around 180 degree, this is the compound you will get, that means आपको ये कंपाउंड मिलेगा, राइट। अब आप देखो कंपाउंड आपका जो फॉर्मेशन हुआ है C and A, सेम कंपाउंड है, राइट। दैट मीन्स हियर दिस स्ट्रक्चर C इज सुपर इम्पोजिबल ऑन A, राइट। C इज सुपर इम्पोजिबल ऑन A, समझ में आया ना? Okay, now next is the what is asymmetric carbon atom? The carbon which is bonded to 4 different atoms or groups of atoms is called chiral or asymmetric carbon and is designated as C star, star not ester इसको बोलते हैं C star, okay। The carbon, so which is known as asymmetric carbon? The carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups is known as asymmetric carbon. मॉडर्न टर्म में हम जो दैट मीन्स जो कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरियोजेनिक सेंटर और स्टेरियो सेंटर भी बोलते हैं मॉडर्न टर्म्स में, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखो दिस कार्बन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इफ आई राइट ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो एंड वन कार्बन इज मीथेन। सो हियर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 different atoms or groups, that is why this carbon is your chiral carbon and this is known as your stereo center or stereogenic center or asymmetric carbon, okay। Similarly, another example, lactic acid, the IPH name is 2-hydroxypropanoic acid. Now here this is the chiral carbon, that means asymmetric carbon in which is attached to 4 different atoms or groups, okay, clear? Now next we will discuss about your what is dissymmetric and what is the that means next point is the necessary condition for chirality. What is the condition for chirality? The condition for chirality is not just the presence of asymmetric carbon atom but the asymmetry of a molecule as a whole. ओनली हम कार्बन को प्रेजेंट कर, एक कार्बन को देख के नहीं बोल सकते, ऑल टोटल तो मॉलिक्यूल के ऊपर एसिमेट्री डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट इज डिसिमेट्री क्या है? कायरल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, those chiral molecules which do not have any plane of symmetry, they are called dissymmetric. A chiral molecule have plane of symmetry and are called symmetric. A chiral molecule है, chiral dissymmetric है, A chiral symmetric है, ये हम इसे याद रखना, A chiral symmetric and chiral आपका dissymmetric, okay। Now what is enantiomers? अभी भी मैंने बोला था जो D form और L form है, optical isomers which are non superimposable mirror images to each other are called enantiomers. जैसे हमने पहले ऑलरेडी B12 का लास्ट पेज में अभी भी डिस्कशन किया था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ enantiomers, ओके, वेयर द मिरर इमेजेस आर नॉट सुपरइम्पोजेबल विथ ईच अदर। सिंपल एग्जांपल और एक लेते हैं, लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड का OH, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वन, ओके, not superimposable with each other. Now next is what is diastereomers. Stereomers which are not mirror images of each other are known as your diastereomers. Stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. What is racemic mixture? जैसे अभी भी बोला था, the optical isomers DL and L forms an equivalent mixture of the enantiomers, both dextro and labio forms are called racemic mixture. It is represented by, because D and L form का combination होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? DL form, ये प्लस, D इज प्लस, L इज माइनस, तो इसका कॉम्बिनेशन मतलब प्लस और माइनस, प्लस माइनस फॉर्म्स एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल रेसिमिक मिक्सचर जब DL मिक्सचर बन जाता है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट डू मीन बाय रेशिमाइजेशन, ओके। व्हाट इज रेशिमाइजेशन? The process of converting D and L forms of an optically active compound into racemic or DL form is called racemization. अच्छा, और एक आपको बात बोलना है, देखो जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर, अगर आप ओनली D फॉर्म लेते हो, D एंड L फॉर्म लेते हो, D फॉर्म एंड L फॉर्म इंडिविजुअल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ओके, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, ये दो जब मिल जाता है आपका DL मिक्सचर बन जाता है, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
अब देखो रेसिमाइजेशन में क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी एंड एल फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू रेसिमिक डी एल फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। प्रोसेस को जो कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। अब जैसे ब्यूटेन 2OL हमने लिखा था, ये प्लस ब्यूटेन 2OL है, ये माइनस है, मतलब ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। ये एक वन एनांशियोमर्स जिसका 50% परसेंट है, सेकेंड एनांशियोमर 50% डी फॉर्म एल फॉर्म। ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, दैट इज ऑप्टिकली दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप कॉम्बिनेशन जब करोगे ये बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, जब हम ऐसे दो को कंबाइन कर सकते हैं, कर लेंगे तो बीच का मर्ज हो जाएगा, दो साइड में आपका सेम कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो जाएगा, आप तो देखोगे। ठीक है, देखो कैसे मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। जैसे इसको देखो, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखती हूँ, जैसे लिखा है ब्यूटेन 2OL। देखो अगर मैं इसे लिखूँगी COH CH3, दिस इज योर CH2 CH3। सपोज ये आपका डी फॉर्म हुआ। ठीक, अब आपका अनदर फॉर्म एल फॉर्म जो है अपोजिट है। देखो C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5। ठीक है, तो ये जब आपका मिल जाएगा, ये आपका क्या रह जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। ये मर्ज जब हो जाएगा, जो आपका कंपाउंड टोटल मिलेगा कौन सा, एक कार्बन। ठीक है, अब ऊपर रह जाएगा CH3, नीचे रह जाएगा C2H5। अब राइट में जो है OH, लेफ्ट में जो है OH। अब देखो यहाँ पे क्या था, 4 डिफरेंट ग्रुप का अटैच था, तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन। अब ये जब हो गया DL फॉर्म, एक DL मिक्सचर बन गया DL फॉर्म, तो इस फॉर्म में क्या होगा, आपका एक देखो ग्रुप सेम आ गया। तो दिस कार्बन इज नॉट ए कायरल कार्बन, दिस इज नॉट योर chiral carbon, so compound is not optically active, it is optically inactive compound, it is optically inactive compound। ठीक, समझ में आया। ओके, now next is what is resolution। resolution is the process of separation of a racemic mixture। अब जब combination को हम racemic mixture बोलते हैं DL फॉर्म, अब DL फॉर्म को अगर D and L फॉर्म में फिर enantiomers हम सेपरेट करेंगे तो प्रोसेस इज नोन एज resolution। ठीक है, now next is major compound, the compound which do not show optical activity in spite of the presence of a chiral atom। chiral atom present होते हुए भी अगर कोई compound optical activity show नहीं करता, then that compound is known as your major compound। Another important definition, the term is that is your retention। what do you mean by retention? retention means if during a reaction, मैं इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी। if during a reaction no bond टू द स्टेरियो सेंटर इज ब्रोकन। याद है ना, स्टेरियो सेंटर किसको बोला था, जो कायरल कार्बन होता है वो स्टेरियो सेंटर। इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड इन द स्टेरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कन्फिगरेशन ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द स्टेरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट में जैसा था वैसे ही आपका स्टेरियो सेंटर में रहेगा, चारों साइड में जो आटम लगा हुआ है वो अब कुछ भी चेंज नहीं होगा रिएक्शन में। सो सच ए रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड थ्रू रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। जो रिएक्शन प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन होगा, बट स्टेरियो सेंटर में कुछ चेंज नहीं होगा, देन दैट इज जो रिटेंशन कन्फिगरेशन। देखो कैसे हम इसको समझाएंगे, आप एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, दिस इज व्हाट 2-methyl butane 1OL। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, हाँ ओके, नाइस। जी Now what is this compound? This is 2-methyl butane 1OL। देखो कैसे हम प्रोसीड करेंगे अल्कोहल ग्रुप, दिस इज योर 1, दिस इज 1 2 3 4। ओके, सो इन 2 position there is a methyl group, so it is 2-methyl butane 1OL। when it's treated with concentrated HCl, आप हीट करोगे concentrated HCl देके, then the OH group is replaced by your Cl group। ओके, अब देखो आप क्लीपेज कहाँ से हो रहा है, जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, CH2 एंड OH के बीच, तो क्लीपेज यहाँ पे हो रहा है एंड OH को सब्सटीट्यूट कौन कर रहा है, क्लोरीन सब्सटीट्यूट कर रहा है, राइट, Cl से। बट अब देखो दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन बिकॉज इट अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब जब हमने रिएक्टेंट से ट्रीटमेंट करके कंसनट्रेटेड HCl को प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ चेंज हो रहा है क्या, एसिमेट्रिक कार्बन में या कायरल कार्बन या स्टेरियो सेंटर में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये जो कार्बन अटैच है अदर ग्रुप के साथ वहीं बॉन्ड क्लीवेज होके आपका अटैचमेंट हो रहा है। दैट मीन्स टू द स्टेरियो सेंटर को अटैच जो जो ग्रुप है वही ग्रुप सेम ही है। सो दिस टाइप ऑफ
reaction where the reactant is same as the product around the stereocenter, that means we will say that it undergoes retention configuration. That means during this reaction no bond at the asymmetric center is broken. यहाँ पे तो कोई asymmetric center में कोई भी bond broken नहीं हुआ. Hence the reaction proceeds with a retention of configuration even though the sign of optical rotation has changed to -2 plus. अब यहाँ पे हमारा जो था वो माइनस मतलब LBO फॉर्म में था और यहाँ पे डेक्स्ट्रो फॉर्म में आया, तो साइन आपका चेंज हुआ, रोटेशन में चेंज हो सकता है बट आपका स्टेरियो सेंटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा. देन इट इज गोइंग थ्रू रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अभी हम 3 टर्म्स को डिफाइन करेंगे यहाँ पे. कैसे? एक रिएक्शन का क्या आउटकम होता है, इन्वर्सन किसे बोलते हैं, रिटेंशन किसे बोलते हैं, रेसिमाइजेशन. एक एग्जांपल लेके हम देखेंगे. राइट, सपोज देखो दिस इज ए कंपाउंड वेयर दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. दिस इज योर सिमेट्रिक कार्बन अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एक H, C2H5, CH3 एंड X. तो मैं 3 रिएक्शंस यहाँ पे फॉलो करूँगी. रूट 1 जिसमें मैंने प्लस वाई मतलब x को रिमूव करके हम डिस्प्लेस करके y को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये रूट 1 है. अब अगर हम x को रिप्लेस करके y को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, B कंपाउंड. राइट, जिसमें C2H5, CH, CH3 ओनली x की जगह आपका y आया. राइट, अब आप देखो जब हम इस ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं, आपका स्टेरियो सेंटर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसे है ऐसे. सो बी अंडरगोज रिटेंशन बिकॉज सेम कॉन्फ़िगरेशन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्टेंट ए जो है वो सेम ही है. ओनली यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने अभी भी आपको दिखाया, अगर एक्स पोजिशन में मैं CH2OH रखूँगी तो एंड वाई पोजिशन में मुझे CH2, इसका मतलब क्या है, OH x है, Cl y है, तो एक्स वाई चेंज हुआ, स्टेरियो सेंटर में कुछ चेंज नहीं हुआ. तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका जो C है, सॉरी यहाँ पे जो आपका B है, इट अंडरगोज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन. ओके, ये रूट 1 हो गया. अब रूट 2 क्या है, अगर मैं प्लस वाई माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट दैट मीन्स डिस्प्लेस करके वाई में सब्सटीट्यूट करूँगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो था उसी स्टेज में ही ओनली एक्स रिप्लेस होकर वाई सब्सटीट्यूट हुआ. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट का है, उल्टा हो रहा है. इसका मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है. H इस साइड से इस साइड आ रहा है, C2H5 इधर, CH3 इधर था लेफ्ट साइड में आ रहा है एंड X रिप्लेस होकर वाई हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट x को डिस्प्लेस करके y सब्सटीट्यूट हो रहा है, along with there is a inversion product. So that means here the inversion product is formed. That means the C product is formed which is opposite configuration of starting reactant A. Starting reactant A जो था उसका opposite configuration हुआ, तो it is a inversion product and it is a retention product. अगर मैं B and C को मिला देती हूँ तो आपका जो कंपाउंड आएगा दैट इज रेसिमाइजेशन और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. इसको अगर मिला देंगे तो आप देखो अभी भी मैंने दिखाया था, अगर मैं इसको मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा, आपका दिस पोजीशन में आपका वाई वाई आ जाएगा, यहाँ पे H दोनों साइड ये पूरा मर्ज हो जाएगा, ये पूरा मर्ज हो जाएगा. तो ओनली आपका कार्बन के ऊपर C2H5, नीचे CH3, राइट साइड H, लेफ्ट साइड H. अगेन सेम 2 आइटम्स आ गया, मतलब रेसिमाइज प्रोडक्ट आ गया. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन एंड दैट इज रेसिमिक मिक्सचर एंड द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो अभी भी मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया. ओके, समझ में आया? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. और एक इम्पोर्टेंट बात, अब ये जो भी मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स में यहाँ पे डिस्कस किया, अब इसके बाद मैं इसका कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ, उस क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करूँगी. उसके बाद हर वक्त मेरी हर वीडियो के बाद आप शॉर्ट्स दिखिए मेरा, मैं हर एक वीडियो के मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो बोर्ड्स हो या नीट का या जेई का सब कॉम्बिनेशन फॉर्म में मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, क्वेश्चन विथ आंसर्स. कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन होगा वीडियो में, कुछ कुछ शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तो आप श्योर शॉर्ट्स को भी मेरा देखिए. ओके, थैंक यू. नाउ आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करते हैं. जैसे देखो suppose first we will discuss, see here, identify the chiral and achiral molecule in each of the following pair of compounds. ये जो आपको पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिया है इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कायरल कौन सा एकायरल है.
अभी अभी हमने बोला था द कार्बन विच इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर नोन एज कायरल कार्बन एंड द कार्बन विच इज़ एंड अदरवाइज इज नोन एज एकायरल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी ये 2 कंपाउंड में से यहाँ पे दिस कार्बन विच इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 ग्रुप, Br ग्रुप, H को अगर मैं ऊपर लगा दूँ तो H, CH2, CH3 ऑल आर डिफरेंट। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, देखो इस कंपाउंड को अगर मैं लिख के दिखाऊँ CH3 CH Br, इधर क्या है CH2 CH3। अब आप देखो ये जो कंपाउंड है ये आपका कौन सा सेंटर है, ये आपका कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन है तो द मॉलिक्यूल इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन ए आपका है, ये है आपका कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखोगे 2H, इस कार्बन पे 2H, ये इस कार्बन पे 2H। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स हियर देयर इज नो एसिमेट्रिक कार्बन एटम। सो द कंपाउंड इज, अगर सेकंड कंपाउंड का आप लिखोगे देखो CH3 C Br, अगर हर एक साइड में मैं लिखूँगी H H H H, देखो सारे तो सेम हो गए। ये तो एसिमेट्रिक कार्बन है नहीं, मतलब कायरल कार्बन तो नहीं है यहाँ पे। अगर नहीं है तो ये कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, लीजिए एक कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फर्स्ट बीट इज योर कायरल एंड सेकंड बीट इज एक। सिमिलरली नेक्स्ट ये जो कंपाउंड यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो ये हर एक, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन। ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन को अगर देखोगे ये OH ग्रुप है, ये H है, ये CH3 है, ये एक CH2 ग्रुप है, क्योंकि CH2 में CH2 फिर CH2। तो इस ये जो कार्बन है हमारा, हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज योर एसिमेट्रिक कार्बन बिकॉज इट अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे HH आ जाएगा, ये भी HH आ जाएगा, बट यहाँ पे है पॉसिबल। तो इट इज़ ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो B का जो फर्स्ट में ये है, ये आपका है B का जो फर्स्ट कंपाउंड है नंबर 1, ये है कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि ये है यहाँ पे एक कायरल कार्बन है। ठीक है, विच अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। बट आप इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँगी कार्बन, ये तो हो गया HOH, बट यहाँ पे क्या है CH2 ग्रुप, यहाँ पे CH2, 2 सेम ग्रुप हो गया। तो ये कार्बन तो नहीं हो सकता कायरल कार्बन। इसमें 2 इज ए कायरल मॉलिक्यूल। समझ में आया ना, 2 इज ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन इज आउट ऑफ these and these two which is optically active and why? Which is optically active and why? कैसे हम बोलेंगे, देखो अगर इस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कंपाउंड, देखो यहाँ पे ये जो कार्बन को मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ यहाँ पे, और ये कार्बन देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये CH2 है। यहाँ पे अगर देखूंगी ये पे आपका CH3 है, कुछ नहीं, टर्मिनल कार्बन CH3, ये भी CH3, तो 2 सेम हो गया। तो ये आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बन सकता, कायरल कार्बन नहीं बन सकता। ये भी तो नहीं होगा CH2, ये भी तो नहीं होगा। दैट मीन्स दिस कंपाउंड नहीं हो सकता कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि कायरल कार्बन होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। ना ये कंपाउंड को देखो, यहाँ पे कार्बन है, ये एक CH3 ग्रुप, ये एक OH ग्रुप, यहाँ पे एक जो कार्बन which is attached to other groups, यहाँ पे एक H. So this is a compound where the chiral carbon is present. If chiral carbon is present, the compound is optically active. So here the right answer is this one, which compound is optically active. Okay, because of the presence of chiral carbon. Now next question is the number of possible enantiomeric pairs that can be produced during the monochlorination of 2-methyl butane. Okay, during the monochlorination of 2-methyl butane. अब देखो कितना पेयर ऑफ एनांटियोमर्स बन सकते हैं 2-methyl ब्यूटेन में। पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे 2-methyl ब्यूटेन का, राइट। देखो 1 2 3, अब ये हो गया 2-methyl ब्यूटेन। ओके, सो दिस इज योर 2-methyl ब्यूटेन, 1 2 3 4। ओके, ना अब वो बोल रहा है कितना आपका मतलब 2-methyl ब्यूटेन का कितना एनांटियोमेरिक पेयर बन सकता है अगर मोनोक्लोरिनेशन आप कर सकते हो। ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन करेंगे मतलब एक H को रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच करेंगे। अगर मैं यहाँ से एक H रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच करूँगी तो CH3 में यहाँ पे रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, एक Cl आ जाएगा इधर, CH2 Cl। समझ में आया? तो आपको एक कंपाउंड मिल सकता है। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या होगा, ये जैसे तैसे रह जाएगा, मतलब ये कंपाउंड आपका CH3 रह गया, ये CH रह गया, ये आपका CH2, ये आपका CH3 है, ये था। अब मैं क्या करूँ, ये जो CH2 है ना, यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूँगी तो मुझे और एक कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ एनहांसर्स दिस शुड बी प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन। अगर मैं C मोनोक्लोरिनेशन इसको करूँगी तो ये मेरा कायरल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो एक कंपाउंड यहाँ पे, एक कंपाउंड अगर ये कार्बन पे मैं क्लोरीन अटैच करती हूँ तो अगेन आपका कंपाउंड मिल जाएगा। क्या है देखो, ये टोटली एक ग्रुप है इस कार्बन के लिए, एक हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन को भी मैं इधर लिख देती हूँ हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक क्लोरीन, तो चारों डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये भी एसिमेट्रिक बन गया। So total 2. Answer is 2 pair of, that means yes, answer is 2 pair of enantiomers are possible. इसका एक बनेगा D and alpha, इसका एक बनेगा 2 pair of enantiomers. So right answer is 3A. Okay. Similarly number 4 पे क्या बोला, a racemic mixture is a mixture of meso and its isomers. मतलब इस चॉइस में से क्या है, हम जानते हैं racemic mixture is mixture of both D and L form with equal proportions, 50% D form, 50% L form. So right option is B, D and its L isomer in equal proportions. Okay. Next is an enantiomerically pure acid is treated with a racemic mixture of an alcohol. देखो एक एसिड अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, नॉर्मली हमें एस्टर मिलेगा, ठीक है। हैविंग वन कायरल कार्बन मतलब कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सो द एस्टर फॉर्म विल बी एन ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। सो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एनांशियोमर से नहीं होगा, मेजो कंपाउंड नहीं रेसिमिक मिक्सचर, आंसर इज ए। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स। अब यहाँ पे एक को मैं बोलती हूँ कितना मैक्सिमम नंबर स्टेरियोआइसोमर्स, हमेशा ये याद रखो कि जितना आपका कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा उतना मैक्सिमम आपका स्टेरियोआइसोमर बन सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस कंपाउंड को देखूँगी ए में, वो यहाँ पे CH3 C2H5 HOH, तो इसमें यहाँ पे एक कायरल कार्बन मुझे मिल रहा है, राइट। इस कंपाउंड नंबर बी में अगर मैं दिखूँगी, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये बन सकता है, एक क्लोरो, ये यहाँ पे एक ब्रोमो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप, सो ये एक कायरल सेंटर बन सकता है। तो इस कंपाउंड, ये जो नंबर ए कंपाउंड है, इसमें एक कायरल कार्बन, यहाँ पे एक कायरल कार्बन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँगी, यहाँ पे जो कार्बन है, देखो यहाँ पे CH3 BrH और ये ग्रुप, ये भी एक कायरल कार्बन। यहाँ पे भी जो कार्बन है, यहाँ पे CH3 BrH, यहाँ पे कायरल कार्बन। दैट मीन्स ये कंपाउंड नंबर सी में मुझे 2 कायरल कार्बन मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डी में भी देखो, यहाँ पे भी जो कार्बन है, यहाँ पे मिथाइल, आयोडो, H और ये एक ग्रुप, तो ये एक कायरल कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी जो कार्बन है H, BrCH3, यहाँ पे जो कार्बन है ये भी कायरल कार्बन है। बट तो आप बोलोगे ये दोनों में तो सेम हो सकता है, नहीं, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कायरल कार्बन है, due to the presence of different chiral carbons the number of stereomers is more, maximum number of stereomers। क्योंकि जब सेम chiral carbon हो जाएगा तो एक कंपाउंड में आपका मेजो कंपाउंड आएगा, मतलब एक मर्ज में कंपाउंड आएगा, तो जितना यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है उससे कम एक यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मेजो कंपाउंड आ जाएगा, राइट। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर्स आपको किस कंपाउंड में मिल सकता है, कंपाउंड नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। Okay, now next is which of the following compound is not chiral। not chiral देखो आप यहाँ पे, पहले तो हम स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे फर्स्ट कंपाउंड को, मुझे देख के पता चल रहा है, यहाँ पे देखो इस अगर कार्बन को मैं खुल के बोलूँगी, ये जो कार्बन है, एक इस कार्बन को एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ड्यूटेरियम अटैच है, एक CH2Cl, इसको खुल के कैसे लिखोगे, हर एक को देखते हैं। D7A में D देखो, फर्स्ट इस कंपाउंड में 7 है, फर्स्ट नंबर ए का देखते हैं। ए में क्या है देखो, ये तो पता चल रहा है क्योंकि डी के बाद जितने भी कार्बन है Cl, हर एक कार्बन का H2 मतलब नीचे और ऊपर तो आपका सेम हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे कायरल कार्बन है ही नहीं, राइट। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, कौन सा कंपाउंड इसमें नॉट कायरल, दैट मीन्स नॉट कायरल नहीं है। तो ऑप्शन के अगर देखेंगे तो ए आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम चेक कर सकते हैं और क्या क्या है, CH3CH दिस। अगर बी को देखते हैं हम, तो बी में क्या है CH3C। अब इस कार्बन को देखो, एक में हाइड्रोजन अटैच है, एक में ड्यूटेरियम अटैच है, एक साइड में CH2Cl, तो चारों डिफरेंट है, मतलब ये तो कायरल कार्बन होगा, तो ये ऑप्शन में तो नहीं आएगा, वो नॉट कायरल पूछा है। अब नंबर सी को देखो, सी में क्या है CH3, ये जो कार्बन है, ऊपर H,
नीचे Cl, साइड में CH2D। ये भी चारों डिफरेंट है, मतलब ये भी आपका कायरल कार्बन हो गया। अब नंबर डी में क्या है, वो बोल रहे हैं CH3 CH2 C। अब देखो ये HDCl, तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन हो, ये कायरल कार्बन HClD एंड ये पूरा का ग्रुप। तो ये तीनों जो कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन है तो नहीं है, मतलब ए। तो ऑप्शन इज ए, आंसर इज ए, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 8 में क्या बोला है, कंपाउंड व्हिच मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस इवन दो दे कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम। ऐसा भी बोला था, दीज आर द मेजोमर्स। ओके, मेजो कंपाउंड्स जिसमें हम बोल रहे हैं मेजो कंपाउंड्स जिसमें आपका कायरल सेंटर होते हुए भी द कंपाउंड्स which are superimposed on the mirror images. Okay, next is how many carbon atoms in the molecule are asymmetric। ये कंपाउंड में आपका कितना एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको खुल के लिख लो, पता चल जाएगा। कैसे देखो, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है COOH। CHOH को ट्वाइस, मतलब कार्बन को इधर एक OH, इधर एक H, फिर इधर एक OH, फिर इधर एक H, फिर COOH, यही तो है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसको पकड़ती हूँ OH H COH, ये पूरा एक ग्रुप है, तो ये आपको एक एसिमेट्रिक कार्बन मिल गया। सेम केस आप इसको अगर पकड़ोगे OH H COH, ये पूरा एक ग्रुप है, तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन मिल गया। तो टोटल आपका कितना एसिमेट्रिक कार्बन मिला, 2। तो राइट चॉइस इज B, 9B, इसमें आंसर इज 2। समझ में आया? ये सब नीट जेई बोर्ड्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट कंपटीशन टाइप क्वेश्चंस हैं। ओके, ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। थैंक यू।